Assalamu alaikum, my dear little students. How are you all? I hope you all are doing good. So today we are going to end our chapter, chapter number 3, and it's very interesting activity which we are going to deal with today. So let's start. Okay, dear students. So just look at this slide. It's about part number 1 and page number 31, and it's a class activity. Okay. So first of all, we have to read a statement that what the statement is demanding from us, and from before this we have to just go through that thing that it is the activity which is regarding use of dictionary. Okay, learn to use the dictionary, part number 1. Read the passage. ये आपको एक पैसेज दिया हुआ है छोटा सा, आपने इसको पढ़ना है. सम वर्ड आर नॉट स्पेल्ड करेक्टली. कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके स्पेलिंग जो हैं वो इनकरेक्ट लिखे हैं. ठीक है. चेक द स्पेलिंग्स इन द डिक्शनरी. आपने अपनी डिक्शनरी आपके पास होगी, आपने उसको सर्च करना है, उस वर्ड को सर्च करना है, उसके स्पेलिंग्स देखने हैं. एंड क्रॉस आउट द इनकरेक्ट वर्ड. मतलब कि आपको 2 वर्ड दिए होंगे, एक के स्पेलिंग ठीक है, एक के स्पेलिंग गलत है. ठीक है. आपने डिक्शनरी खोलनी है, आपने करेक्ट स्पेलिंग को टिक लगाना है और इनकरेक्ट स्पेलिंग को आपने कट कर देना. ठीक है. 1 हैज़ बीन डन फॉर यू. फर्स्ट जो आपका एक सेंटेंस है उसके अंदर आपको बताया हुआ है कि आपने किस तरीके से करना है, तो हम पहले उसको देख लेते हैं. सून आफ्टर द लास्ट बेल डैनियल एंड डैनी हरिड. अब हरिड के 2 स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं. ठीक है. होम टू स्पीक टू देयर पेरेंट्स अबाउट अ न्यू क्लब. अब आपने देखना है कि हरिड के स्पेलिंग कौन से करेक्ट हैं. तो जब हम डिक्शनरी सर्च करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हरिड के स्पेलिंग जो हैं HURRIED, ये वाले स्पेलिंग जो हैं वो करेक्ट हैं. ठीक है. सिंगल आर वाले को आपने कैंसिल कर देना, काट देना. So moving ahead, we think it's a great idea, they said, to have a club that goes around helping children. It could also build up school spirit. The children's parents cancelled their own plans for Saturday afternoon. अब यहाँ पर कैंसिल की भी 2 स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं. तो व्हाट यू थिंक कि कैंसिल की क्या स्पेलिंग हो सकते हैं. तो आपने इस डिक्शनरी को सर्च किया. आई जस्ट सर्च द डिक्शनरी एंड आई जस्ट फाउंड आउट कि कैंसिल की जो स्पेलिंग है वो CANCELLED कैंसिल की स्पेलिंग है. जो नेक्स्ट वाली स्पेलिंग है वो गलत है. सो आई जस्ट कट इट आउट. लेटर दे हेडेड फॉर सम आइसक्रीम sundaes. When they returned home, the children thought quietly about their dreams and plans. अब here the word quietly की भी 2 spellings लिखे हुए हैं. So you just have to search the dictionary and try to mark the correct spellings. तो quietly के जो spellings हैं वो है QUIETLY. ठीक है. जो next spelling वो आपने cut down कर देना. The next day they left early to share their ideas with their teacher. Mrs. White was quite excited. यहाँ पे quite खामोशी वाला quite नहीं है, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा. ठीक है. enough. आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड हो तो वो वाला एक्साइटमेंट क्वाइट है. तो यहाँ पर क्वाइट के स्पेलिंग होगी QUITE क्वाइट. ठीक है. क्वाइट एक्साइटेड. Would you allow the whole class to join the friendship club? She asked. Mrs. White promised them time during class to discuss plans. She even volunteered to be the secretary. अब आपने देखना है यहाँ से लेके आगे जो sentences हैं 3 to 4 lines होंगी. You just have to search the dictionary and you have to mark the correct word and you have to cancel out the wrong and incorrect word. Okay. So it is a kind of class activity. Just take out the dictionary, start searching the words and do this activity right here. Okay. Okay, my dear ones, now just look at this slide. It's on page number 32 and it's part number 2. Look at the entry for holiday as given in a dictionary. अब ये जो task है ये बहुत interesting है. You just have to search a dictionary for the given words. ठीक है. अब जैसे आपने holiday का word है वो आप जब डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो वहाँ पर कुछ sentences भी बने होंगे. ठीक है. अब holiday के साथ जो words लिखे होंगे, जैसे for suppose यहाँ पर हॉलीडे के बारे में एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है और उसके अंदर जिस तरह डिक्शनरी में मीनिंग लिखे होते हैं उस तरह से मीनिंग लिखा हुआ है. ठीक है. अ टाइम व्हेन यू डू नॉट गो टू वर्क और स्कूल एंड ऑफन गो एंड स्टे अवे फ्रॉम होम. द स्कूल हॉलीडेज स्टार्ट नेक्स्ट वीक. अब मतलब ये हॉलीडेज का मीनिंग बताया. उसके बाद हॉलीडेज के लिए सेंटेंसेस बनाने शुरू हो गए. ठीक है. जैसे द स्कूल हॉलीडेज स्टार्ट नेक्स्ट वीक. ठीक है.
उसके बाद वी आर गोइंग टू द कोस्ट फॉर आवर समर हॉलीडेज, और फिर थर्ड सेंटेंस है मिसेस स्मिथ इजंट हियर दिस वीक, शी इज़ ऑन हॉलीडे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अब साइड पे जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं वो ये हैं कि हॉलीडे के साथ जो वर्ड्स हम लोगों ने पढ़े हैं वो क्या है, एक तो समर हॉलीडेज है, ठीक है, वो समर, वी आर गोइंग टू द कोस्ट फॉर आवर समर हॉलीडेज। तो हॉलीडे के सेंटेंस के दौरान हम लोगों ने समर हॉलीडेज का वर्ड पकड़ा और ऑन हॉलीडेज का वर्ड पकड़ा कि हॉलीडे के वर्ड के साथ कौन कौन से वर्ड्स डिक्शनरी में यूज़ हुए हैं। तो सिमिलरली हम लोगों ने जो गिवन वर्ड्स हैं हम लोगों को जो नीचे एक्टिविटी में दिए गए हैं, हम लोगों ने ये भी वर्ड्स हैं डिक्शनरी में सर्च करने हैं, और इन वर्ड्स के साथ जो वर्ड लिखे होंगे या कोई प्रपोजिशनल वर्ड्स होंगे या कोई भी वर्ड होगा वो हम लोगों ने लिखना है। जैसे अराइव है, जैसे आपने एक्टिविटी के एक्सरसाइज में आ जाए, लुक अप दीज वर्ड्स इन द डिक्शनरी, फाइंड वर्ड्स दैट गो टुगेदर विद देम एंड राइट देम इन ब्लैंक्स बिलो, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब जैसे अराइव का वर्ड है, अराइव का मतलब क्या होता है, वर्ब है ये, किसी जगह पे पहुंचना, ठीक है, या किसी जगह पे पहुंचने के लिए निकल जाना, ठीक है। तो अब अराइव एट स्टेशन, एयरपोर्ट और स्कूल, जब हमने डिक्शनरी सर्च की तो इसके अंदर ये सेंटेंस बना हुआ था, अराइव या आई हैव अराइव्ड एट स्टेशन, एयरपोर्ट एंड स्कूल, ठीक है। और एक दूसरा सेंटेंस बना हुआ था अराइव इन टाउन और कंट्री, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि हम लोगों ने डिक्शनरी निकालनी है, और जैसे सेकंड पार्ट है क्यूरियस, क्यूरियस का वर्ड हम लोगों ने डिक्शनरी में सर्च करना है। एंड आफ्टर दैट मैंने जब डिक्शनरी में क्यूरियस का वर्ड सर्च किया तो मुझे वहाँ पे लिखा हुआ था क्यूरियस अबाउट, शी वॉज क्यूरियस अबाउट द पार्टी, ठीक है। तो क्यूरियस के साथ कौन सा वर्ड यूज़ हुआ, अबाउट का। सिमिलरली आइडिया का जब मैंने वर्ड सर्च किया तो आइडिया के साथ लिखा हुआ था आई हैव गॉट अ गुड आइडिया, गुड आइडिया का वर्ड भी हो गया। या डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ दिस प्रोग्राम, या आपको इस प्रोग्राम के बारे में कोई आइडिया है, तो आइडिया के साथ ऑफ का वर्ड भी यूज़ हो गया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने जब डिक्शनरी सर्च करनी है और जो वर्ड्स आपने सर्च करने हैं, जब उनके सेंटेंसेस आप डिक्शनरी में देखेंगे तो यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व द वर्ड्स विच हैज़ बीन गिवन विद दैट वर्ड, ठीक है। जिस तरह क्यूरियस के बारे में मैंने आपको बताया, आइडिया के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। इफ़ यू फील एनी ट्रबल, एनी प्रॉब्लम, देन यू जस्ट हैव टू आस्क फ्रॉम मी, आई विल हेल्प यू आउट। ओके, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ क्लास एक्टिविटी। 2 पार्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं, एंड डी एंड ई पार्ट आपने खुद से करना है, इट्स वेरी क्वाइट ईजी, तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ जस्ट कम टू लर्न टू राइट। अब लर्न टू राइट के अंदर हम लोगों ने क्या लिखा है जी, यहाँ पे हैव यू एवर डन समथिंग गुड फॉर समवन और हेल्प समवन विदाउट वांटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। ओके, अब ये जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि आपने कभी किसी की हेल्प की है, किसी के साथ अच्छा किया है, ये सोचे बगैर कि वो भी मेरे साथ कुछ अच्छा करेगा, कुछ भी डिमांड किए बगैर आपने किसी के लिए कोई सर्विंग की है। हैज़ एनीवन एवर डन द सेम थिंग फॉर यू, क्या किसी ने आपके लिए किसी बगैर किसी मतलब के आपकी मदद की है कि नहीं। दीज आर द रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। डेफिनेटली हम जब काइंडनेस जो होती है ना बेटा, वो होती है रहमदिली, और काइंडनेस हमेशा भी किसी मतलब के बगैर की जाती है, ठीक है। आप कभी भी किसी की हेल्प करो तो बगैर किसी मतलब के करो कि अगर मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ तो ये भी मेरी हेल्प करेगा, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपका जो रिलीजन है वो भी आपको यही टीचिंग देता है कि काइंडनेस के साथ काम लेना चाहिए, आपको हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए बगैर किसी मतलब के, ठीक है। इन 1995 17 फरवरी बिकेम रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस डे। अब 1995 से 17 फरवरी का जो दिन है वो काइंडनेस का दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ऑफ कोर्स वी कैन परफॉर्म सच एक्ट्स ऑल थ्रू आउट द ईयर। डेफिनेटली हम बहुत सारे ऐसे काम पूरे दिन में, पूरे साल में करते हैं जो रहमदिली के काम होते हैं, जिसमें हम लोगों की मदद करते हैं, उनको किसी प्रॉब्लम उनकी सॉल्व करते हैं, किसी को पैसे दे के हेल्प करते हैं, किसी को खाना दे के हेल्प करते हैं बगैर किसी मतलब के, या किसी की वजह से हेल्प करते हैं। किसी का फॉर सपोज एक्सीडेंट हो जाता है तो हम उनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, या किसी को फाइनेंशियल एड की ज़रूरत होती है तो हम उनकी हेल्प करते हैं। तो आपने एक ऐसा मतलब एक एक्टिविटी है ये जिसके अंदर आपने कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी है, आपने भी एक स्टोरी की तरह कुछ लिखना है जिसके अंदर आपने बताना है कि आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी की हेल्प की हो विदाउट एनी काइंड ऑफ रीज़न और एनी काइंड ऑफ मीनिंग, और किसी ने आपकी मदद की है ऐसी कि नहीं, ठीक है। तो ये हम मज़ीद इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। Okay, dear students, before moving ahead, I just want to give you a little concept of simple past and past continuous tense.
as you all know, we just read about simple present tense and you all know what was the rules and regulations for that. So it's a very little kind of concept which I'm going to give you so that it will be easy for you to do your exercise. So simple past tense, it is the most simplest sentence in whole English rules and grammar. Okay, इसका जो फॉर्मूला होता है सिंपल पास्ट का, तो पहला ये होता है कि ये माजी की बात की गई होती है, जो चीज़ गुजर चुकी होती है उसकी बात की जा रही होती है. ठीक है, इसके अंदर सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं. सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा होता है. ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की फॉर्म्स तो आपको बताऊंगी. ठीक है, और ऑब्जेक्ट होता है जिससे काम किया जा रहा होता है. ठीक है, या हियर आर सम एग्जांपल. शी एट माई एप्पल. अगर यहाँ पे मैं लिख देती कि शी ईट्स माई एप्पल, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता. लेकिन आई जस्ट रॉट शी एट माई एप्पल. ईट, एट, ईटन. ठीक है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है. तो ये कौन सा टेंस हो गया? सिंपल पास्ट टेंस. Second example is they jumped together. They jumped together. Jump, jumped, jumped. So ये second form of verb है, so it is a simple past tense. Ali flew a kite. Ali flies a kite भी हो सकता था, लेकिन ये present form बन जाती है. हम past के बारे में बात करें तो we just have to write the second form of verb. Fly, flew, flown. Ali flew a kite. ठीक है, तो ये बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप अपने माइंड में रख रहे हैं. इट विल हेल्प यू आउट. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ जस्ट कम टू लर्न टू राइट. हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. अब आपको स्टेटमेंट दी गई है, एक एक्टिविटी करनी है आपने. राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन समथिंग दैट यू डिड फॉर समवन. आपने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है जिसके अंदर आपने ये बताना है कि आपने किसी के लिए कुछ किया है और कब किया है, और समथिंग दैट समवन डिड फॉर यू, या किसी ने आपके लिए कुछ किया है. Look at the chart below. It may help you to build an account of the experience. अच्छा, आपको समझ आ गई होगी कि आपने एक्चुअल में करना क्या है. आपने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, एक छोटी सी स्टोरी लिखनी है जिसके अंदर आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है कि आपने कभी किसी की हेल्प की है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, और अगर किसी ने आपकी हेल्प की है तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं. ठीक है, दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप एक इवेंट डिस्कस करना है आपने. ठीक है, और बिसाइड दिस इवेंट आपने क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे भी बताऊँगी. लेकिन आपने एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है. आपने सबसे पहले सेटिंग बनानी है. ठीक है, उसके बाद आपने कैरेक्टर्स डिफाइन करने हैं, उसके बाद आपने प्रॉब्लम को डिस्कस करना है, और फिर आपने सोल्यूशन को डिस्कस करना है. अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो जस्ट हम एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं. आई विल ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इब्राहिम एंड अब्दुल्ला डिड फॉर मी लास्ट समर. अब एक बंदा है जो अपना ये शेयर कर रहा है एक्सपीरियंस कि इब्राहिम और अब्दुल्ला ने मेरे लिए क्या किया था लास्ट गर्मियों में. My mother had bought a bicycle for me. मेरी मामा ने मुझे एक साइकिल खरीद के दी थी. But she did not have the time to teach me to ride it. लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो मुझे बाईसाइकिल चलाना सिखा सके. ठीक है, उन्होंने ले दी लेकिन मुझे चलाने नहीं आती थी. So what he did, I needed someone to take me out in the neighborhood and help me to learn. अब मैं चाहता था कि मुझे कोई बाहर नेबरहुड में लेके जाए, बाहर लेके जाए, और कोई नेबर मेरी मदद कर दे उसको सीखने में. ठीक है, आई टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट इट. मैंने अपने दोस्तों के साथ ही बात शेयर की. एंड दे केम ओवर इमीडिएटली. और वो मेरी मदद के लिए फ़ौरन से आ गए. ठीक है, दे हेल्प मी टेक माई ब्रांड न्यू बाइक आउट इनटू द ओपन. उन्होंने मेरी हेल्प की अपनी जो ब्रांड न्यू बाईसाइकिल थी उसको बाहर लेके जाने में. दे हेल्प मी गेट ऑन द बाइक. उन्होंने मुझे बाइक पे बैठने में हेल्प की. and taught me how to ride it. और फिर उन्होंने मुझे सिखाया कि बाइक चलाते कैसे हैं. ठीक है, ओके. दे आल्सो encouraged me. उन्होंने मुझे बहुत हौसला भी दिया, अप्रिशिएट भी किया by telling me that I was doing fine. उन्होंने मुझे हौसला कैसे दिया? मुझे अप्रिशिएट करके कि हाँ तुम अच्छी चला रहे हो, वेरी गुड. when I really wasn't, जबकि मैं अच्छी नहीं चला रहा था. they picked me up when I fell down. वो जब मैं गिर जाता था तो वो मुझे उठा लेते थे. they were wonderful. वो बहुत शानदार थे. I can now ride because of them. अब मैं बाइक चला सकता हूँ सिर्फ उनकी वजह से. so my little student, ये उसने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया अपनी लाइफ पर कि उसकी फ्रेंड्स ने उसकी किस तरह हेल्प की एक बाइक राइडिंग के लिए, और बाइक राइडिंग को सीखने के लिए. तो अब सबसे पहले उसने सेटिंग बताई कि एक्चुअल में जो एक्ट है वो कहाँ हो रहा है. उसके बाद उसने कैरेक्टर्स को डिफाइन किया कि कितने कैरेक्टर्स हैं, 2 कैरेक्टर्स उसने फ्रेंड्स को डिफाइन किया. ठीक है, आप जितने मर्जी आप डिफाइन करना चाहें आप कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है.
और उसके बाद उसने प्रॉब्लम डिस्कस की कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी कि उसे बाइक नहीं चलाने आती, ठीक है। फिर उसने सॉल्यूशन डिस्कस किया कि सॉल्यूशन क्या था कि उसके फ्रेंड्स ने उसकी हेल्प की और उसको बाईसाइकिल चलाने आ गई, ठीक है। अब इसको हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे, यू जस्ट हैव टू स्टे कंटिन्यू विद मी, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं एंड आई नो दैट, ठीक है। ओके, सो देयर इज़ अनदर एक्टिविटी, लर्न टू स्पीक। लर्न टू स्पीक में आपने क्या करना है, वर्क इन ग्रुप ऑफ 4। ओके, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, फर्स्ट लेट मी टेल यू वन थिंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, यू जस्ट हैव टू राइट अ पैराग्राफ बाय फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स। आपको मैंने बता दिया कि आपने पहले एक सेटिंग क्रिएट करनी है, वेयर एंड व्हेन डिड द एक्ट टेक प्लेस। आपने बताना है कि ये एक्ट कब हुआ, लास्ट समर में हुआ, विंटर्स में हुआ, ऑटम में हुआ, लास्ट ईयर हुआ, कि अभी कल परसों, आपने टाइम बताना है और प्लेस बतानी है कि कहाँ हुआ, ठीक है। देन यू हैव टू डिस्कस अबाउट द करेक्टर्स, कि आपकी स्टोरी में, आपकी एक्सपीरियंस में कौन कौन से लोग थे, ठीक है। देन आपने प्रॉब्लम डिस्कस करनी है कि एक्चुअल में आपने प्रॉब्लम क्या फेस की वाइल दैट एक्सपीरियंस, ठीक है। और उसके बाद आपका अपने सोल्यूशन लिखना है कि आपने उस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे किया, ठीक है। तो ये एक बहुत ईजी सा आपको मैंने टिप बता दी कि ये 4 चीज़ें आपने अपने पैराग्राफ में डिस्कस करनी है एंड ट्राई टू राइट अ वेरी कंसाइज पैराग्राफ। बहुत ज़्यादा एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स भी हो सकती हैं उसमें। You just have to write in a very precise way and in a very short sentences, ठीक है। लंबे लंबे sentences नहीं लिखने हैं आपने, और पंक्चुएशन का भी बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, सो इट्स आवर लास्ट टास्क of chapter number 3, learn to speak. It's very interesting. What you have to do, you have to definitely, you are not in school, so you are at home, so you can easily make the group of the 4 people. Either you just take help of your parents or your friends. You just have to make the group of 4 people. Think of any room in your house. आपके घर में जो भी कमरा है उसके बारे में आप सोचें। Do not tell anyone which room it is. आपने बताना नहीं है कि आपने कौन सा कमरा सोचा है, ठीक है। Take turns to describe the room. बारी बारी आपने टर्न, सबकी एक एक टर्न आएगी जिसमें वो डिफाइन करेंगे उस रूम को बाय डिफाइनिंग द ऑब्जेक्ट, कि उस कमरे में ये चीज़ें हैं, तो आपके हिसाब से ये कमरा कौन सा हो सकता है, ठीक है। द अदर विल ट्राई टू गेस, और बाकी जो लोग होंगे वो उसको गेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, अब एक बच्ची है, 4 पीपल हैं, अब एक जो लड़की है वो बता रही है कि देयर इज़ अ लार्ज टेबल इन इट, उस कमरे में बड़ी सी टेबल है। देयर आर सेवरल चेयर्स अराउंड द टेबल, उस टेबल के अराउंड बहुत सारी चेयर्स हैं। वहाँ पे एक कबर्ड भी है, इट हैज़ अ कबर्ड विद सम प्लेट्स एंड डिशेस, वहाँ पे एक कबर्ड है जहाँ पे प्लेट्स और डिशेस भी पड़े होते हैं, ठीक है। अब बाकी जो 3 पीपल हैं, दे आर ट्राइंग टू गेस दैट रूम। तो उन्होंने क्या गेस किया है, इट इज़ अ डाइनिंग रूम, जहाँ पे बैठ के हम खाना खाते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली बड़ी सी टेबल होती है, उसके अराउंड सेवरल चेयर्स होती हैं, फिर कबर्ड होती है वहाँ पे जहाँ पे प्लेट्स और स्पून्स और ग्लासेस लगे होते हैं। तो दे जस्ट हैव आइडेंटिफाइड दैट रूम, ठीक है। अब मैंने एक छोटी सी एक्टिविटी बनाई थी, आई जस्ट प्लेड इट विद माय सिबलिंग्स। आप भी इसको अपने फ्रेंड्स और अपने बहन भाइयों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट मेक लिटिल क्लूज फॉर दैट रूम, दैट देयर इज़ अ बेड, there is a cupboard, there are the side tables having a lamp on it and a mirror hanging on the wall. अब उस रूम के अंदर क्या क्या है, बेड है, कबर्ड है, साइड टेबल्स हैं, लैम्प है और एक मिरर है जो कि वॉल के ऊपर है। तो हम इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेफिनेटली इट इज़ अ लिविंग रूम और इट इज़ अ बेड रूम, ठीक है। जहाँ पे बेड है, कबर्ड है, टेबल्स हैं, मिरर है, तो इट विल बी अ बेड रूम, ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू मेक सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ एंड सच काइंड ऑफ clues of a room, and you just have to discuss it with your fellows and just enjoy it. You will definitely enjoy it with your fellows, so just do it. I will appreciate you if you will just share your thoughts and your experience with me. I will really enjoy it, so just go through all this. Okay my little buddies, we are done with chapter number 3, 5 bells. We have done with all the book exercise, and I have really enjoyed, and we learned a lot of things from there. So I think these all activities are very much helpful for you. आप एक अपने घर में बैठ के इसको enjoy कर सकते हैं। मैंने अपनी activities बहुत enjoy की आप लोगों के साथ,
सो इट्स अ काइंड ऑफ वेरी गुड एक्सपीरियंस, तो हम इसको मज़ीद इंजॉय करेंगे, ठीक है। आगे चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इंटरेस्टिंग थिंग्स हैं, so वी विल enjoy it together इंशाल्लाह, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।